George Cherian, whom I have talked today only, because today when I must realize that when he is mentor, I should talk to him. So I take the opportunity to introduce him, and he will introduce to Kamal Kisorji. But before that, I would like to give his introduction. And George Cherian is he has completed FDI, LCIP. So on these days, this FDI and LCIP is very popular. So this is a credit to him. So he was district governor 2006-7, and Lions Club of Kottayam, Kerala, district 318B, and his slogan was on that time legacy of brotherhood, and his achievements on that period is 100% district governor award with medal. So he has designed and developed a service program doing governorship, Lions Medicard program for aged, which won the International Public Relations Award in the 2007 International Convention. So second position, he has held associate editor in Lions India magazine, multiple LCF chairperson, multiple district Leo chairperson, GLT coordinator multiple for 3 years, GMT coordinator for 3 years, and MD vision coordinator since 2020. So many posts in the multiple level, and we must congratulate him for continuously busy after the governorship. Generally, after the governorship, people taking rest, and he is over busy after the governorship. So his qualifications is graduate engineer with diploma in management laws profession. So I request him to now to introduce our speaker, Kamal Kisorji. Please, George. Thank you, area leader and Subhash Dasani, for your wonderful introduction. Actually, I should compliment him first, because today morning he rang up me and informed me about the program of today's program. And I was telling him that this is the first time I'm getting a call from an area leader regarding the program. So meticulously he has planned, and he has sent the agenda also. So what all things will happen before the commencement of the session. Anyway, thank you very much, area leader Subhash Dasani, once again for your nice words of introduction. Again, I should compliment Dr. Mehta also, the technical coordinator, who has taken a lot of pain. Now, while listening, the first presenter, Lion Guriraja Bahadur, I should not fail to compliment him for the beautiful presentation, because he was making a presentation like a teacher, so that everyone will be able to understand what exactly it is project planning. And I am again happy to see my trainer, PDG and Rajesh Mehra, after a long time. So anyway, my dear friends, it's a great occasion for everyone. Now coming to my good friend, Kamal Kishore Agarwal, the next presenter about membership development. As you all know, he is a man of humility. We had a talk a few days back, and he has been sharing his project, his PowerPoint, and I could see this person is a man of humility. With humility, he accepts everything, and he has prepared everything in a beautiful manner. And he is from Lions Club of Secunderabad Pearls, and as the name indicates, he seems to be a pearl in the area of service. He is feeding thousands of people every day. No wonder how busy a person he would be, because if to feed 1,000 people every day, what much strain a person should take. He is taking that great leadership. We should compliment him for that great work. Secondly, he joined Lionism as a Leo in 1988 and a Lion in 2003. During his presidency in 2005, he could convert his club as a model club. Whenever or wherever he was creating histories. As region chairperson, he could start 10 clubs
Whereas when he was the GMT coordinator during the span of 3 years, he could start 28 clubs. That is the way in which he works. And today, he is with a beautiful presentation of membership development. I wish him the very best. And he is, I must to say one thing, he is in the field of textile business. He is doing a rolling business. In spite of that, he finds time to do service. He was unanimously elected as the second vice district governor of his district. That shows how much popular he is. Now he is the first VDG. Over to my good friend Kamal Kishore Agarwal for his presentation on membership development. All the best, my dear friend. Start, sir. Yes, yes. Yeah. Today's convener of this program, Lion Swajji, multiple council chairperson of 3232, Lion JP Trivedi ji, all the respected district governors, and particularly my district governor, Lion Vidyasagar Reddy Garu, my mentor for this session, Lion George Cherian ji, and my mentor in Lionism. Because of Lion Rajesh Mehra ji, I am in front of you. Pranam sir, aapko sat sat pranam. And my co-presenter, Lion Guru Raja ji. All the other Lion members, fellow Lion members, respected Lion ladies, members from my home district, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब के साथ है, मेरा हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। आप सभी लायन मित्रों को मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ सर। आप सभी का फिर से एक बार इस सेशन में तहे दिल से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। लायन फ्रेंड्स, मैं एक ऐसे स्टेट में अभी कहने जा रहा हूं, अहमदाबाद गुजरात, जहां पे हर स्टेट पे तरक्की होती है, चाहे कोई भी फील्ड में ले लीजिए। फिर भी मैं थोड़ी बहुत मेंबरशिप डेवलपमेंट के बारे में कुछ ना कुछ कहने की कोशिश जरूर करूंगा। ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, कि जैसा कि अभी हमारे जॉर्ज चेरियन जी ने बताया आपको कि मैं एज ए आरसी 10 क्लब्स दे चुका हूं, एज ए जीएमटी कोऑर्डिनेटर 3 साल के लिए था तो 28 क्लब्स दे चुका हूं। और इस पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट को इसलिए भी मैं लाइक करता हूं क्योंकि ये तरक्की का रास्ता बताता है हमें। आप चाहे कोई भी फील्ड ले लीजिए, आज हम अगर कोई फैमिली की बात करते हैं, हर परिवार चाहता है कि उसका परिवार बढ़े, हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिजनेस बढ़े, हर एनजीओ भी यही चाहता है, और हमारा लायंस क्लब इंटरनेशनल भी यही चाहता है कि हमारा लायनिज्म, हमारा लायंस परिवार बढ़े और स्ट्रांग रहे, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा हैंड्स मिल सके और हम ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी की सर्विस कर सके। तो यही मकसद है कि हमें मेंबरशिप डेवलपमेंट किस तरह से हम करना चाहिए, इसके बारे में मैं स्लाइड्स तो नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं ज्यादा शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, ये देखिए कॉइन, आप कॉइन देख रहे हैं, इसे हेड एंड टेल, हर सिक्के के पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या इस कॉइन को, हेड एंड टेल को अलग कर सकते हैं क्या? आप या तो चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, या अगर हो सका तो बताइए कि No, we cannot. We cannot. बट मेरे हिसाब से
आज के युग में ऐसे टेक्निक्स आ चुके हैं, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, हम कोई ना कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इस कॉइन को, हेड एंड टेल को अलग कर सकते हैं। कर सकते हैं। थैंक यू। दो डिवाइड कर दो। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी हेड एंड टेल जब तक है तो इस कॉइन की कुछ ना कुछ वैल्यू है। अगर हम हेड एंड टेल को हम अलग कर देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी? जीरो वैल्यू हो जाएंगी। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ लायन फ्रेंड्स, हम कितना भी एफर्ट्स करके हम मेंबर्स को लेके आइए, जब तक प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर एंड मेंबरशिप कमेटी चेयरपर्सन एंड स्पॉन्सरर ऑफ द मेंबर इस कॉइन की तरह अगर जुड़ के नहीं रहेंगे, इस कॉइन की तरह हम जुड़ के नहीं रहेंगे तो हमारी वैल्यू भी, हमारा एफर्ट्स भी पूरा व्यर्थ हो जाएगा और हमारा सारा जो भी हम मेहनत करते हैं वो जीरो हो जाएंगी। तो एज ए टीम वर्क हमें कुछ भी हासिल करना है तो एज ए टीम वर्क ही हासिल करना है। फ्रेंड्स, हम मेंबरशिप डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो सिर्फ ये 5 पॉइंट्स याद रखिए। 5 आइज। पहला, आइडेंटिटी। आज हमारे लॉयनिज्म के बारे में इतना अवेयरनेस आ चुका है सोसाइटी में। कुछ साल पहले था लॉयनिज्म के बारे में एक भ्रम था कि ये 9-10 बजे के बाद का क्लब है, यहाँ पे कई तरीके के दूसरे एक्टिविटीज रहते हैं। बट आज की डेट में हमारे जो सर्विस एक्टिविटीज है, हमारे जो परमानेंट प्रोजेक्ट्स है, उसकी वजह से आज सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर एक लॉयंस को देखने की जो दुर्दशा है या जो भी उनकी जो नजर है, वो जो सोच है लॉयनिज्म के प्रति अभी बदल चुकी है। हम चाहते हैं या तो हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। आप अपने आसपास देखिए, अपने सराउंडिंग में देखिए, अपने फ्रेंड सर्कल में देखिए, अपने बिजनेस फ्रेंड्स में देखिए, नाइबर्स को देखिए, अपने रिलेटिव्स में देखिए। आपको यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो हम बात करते हैं क्वालिटी मेंबर्स की, जो हम बात करते हैं, यही ये जो पहला पॉइंट है, जो हमारा चयन होता है मेंबर का, जो हम आइडेंटिफाई करते हैं मेंबर को। क्योंकि हमारे लॉयनिज्म में आप सबको पता है कि हमारे पास मेंबर इनविटेशन से होता है, एप्लीकेशन से नहीं होता है। हम ही कोई ना कोई मेंबर को इनवाइट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी आप काम करेंगे, मैं यहाँ पे आपसे निवेदन कि दिल से काम कीजिए। आप यहाँ दिमाग से नहीं या कोई प्रेशर में आके नहीं कि कोई सीनियर मेंबर्स आपको प्रेशर डाल रहा है कि हमें मेंबर्स लाना है, 2 दिन में 4 दिन में हमको 50 मेंबर लाना है, 30 मेंबर लाना है, तो उसकी जो वैल्यू रहेंगी वो कॉइन की तरह हो जाएंगी, जो फेस वैल्यू नहीं है उसकी जीरो हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई ये करना है आपके आसपास कि जो भी व्यक्ति को आप मेंबर बनाना चाह रहे हैं, क्या वो कैपेबल है, क्या वो समाज सेवा में रुचि रखता है, तन मन धन से, जो हमें तन मन धन तीनों ही चाहिए। ये आप अगर आइडेंटिफाई करेंगे, और आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने फ्रेंड सर्कल में यहाँ वहाँ देख सकते हैं। तो वो आइडेंटिफाई करके उस मेंबर के बारे में आप सबसे पहले अपने क्लब में डिस्कस कीजिए। आप मेंबरशिप कमेटी के साथ में डिस्कस कीजिए, आप अपने बोर्ड मीटिंग में डिस्कस कीजिए कि मैं इस तरह से कोई ना कोई मेंबर को लाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये अगर हम प्रोसेस, जो हमारा प्रॉपर प्रोसेस है, अगर हम फॉलो अप करेंगे तो डेफिनेटली क्वालिटी मेंबर आएंगे और मेंबर भी रिटेन रहेंगे, और मेंबरशिप डेवलपमेंट भी, हमें मेंबरशिप धीरे धीरे, हमारी मेंबरशिप भी स्ट्रांग होते जाएंगे और क्लब भी स्ट्रांग होगा। हम उन्हें इन्वाइट करने से पहले आप बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन कीजिए। बोर्ड मीटिंग में जब फाइनलाइजेशन होता है तब उस मेंबर को आप इन्वाइट कीजिए। जैसा कि मैं हमारे क्लब का एक आपको उदाहरण दूंगा, लायंस क्लब ऑफ सिकंदराबाद पर्ल्स। हमारा क्लब फैमिली क्लब है। हम जब भी कोई मेंबर, न्यू मेंबर को जब हम क्लब में लाते हैं तो उसे 2 बार हमारे क्लब में इन्वाइट करते हैं। 2 मीटिंग में वो इन्वाइट किए जाते हैं ताकि दोनों में अंडरस्टैंडिंग देख सके, दोनों के वेवलेंथ किस तरह से देख सके, वो देखे कि हम मीटिंग किस तरह से कंडक्ट करते हैं, टाइम पे, बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट करते हैं, टाइम पे खत्म करते हैं, एजेंडा बरोबर प्रॉपर फॉलो होता है। और हमारा फैमिली क्लब रहने से उतना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी और उतनी ही जिम्मेदारी हम हमारे लेडीज मेंबर्स को भी देते हैं, और साथ ही हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। राजेश सर हमारे 1-2 मीटिंग्स देख चुके हैं। तो इस तरह से हम
नए मेंबर्स को जिसको बुलाते हैं पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हम और उन दोनों की बिलोंगिंगनेस जो हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बरोबर बैठती है या नहीं बैठती है, तब जाके हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप मेंबर्स को बुलाइए, एक 2 मीटिंग अटेंड होने के बाद में देखिए आप किस तरह से अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बाद में प्रॉपर इंडोक्ट्रिनेशन। यहाँ पे जनरली क्लब बहुत मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जनरली क्लब से मिस्टेक होता है। कोई भी न्यू मेंबर्स को जब लेके आते हैं तो प्रॉपर तरीके से इंडोक्ट्रिनेशन का जहाँ पे प्रॉब्लम आता है, आप जल्दीबाजी में कोई भी मेंबर को लेके आते हैं, वहां पे तकलीफ हो जाती है। आप प्रॉपर इंडोक्ट्रिनेशन के लिए कोई अपने सीनियर मेंबर्स को बुलाइए जिसे लायनिज्म के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस है। आप अपने क्लब से भी मेंबर्स को ले सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट्स में से बुलाइए। इंडोक्ट्रिनेशन में सारी बातें हमारे लायनिज्म के बारे में, फाइनेंशियली कमिटमेंट्स, हम किस तरह से काम करते हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस तरह कितने कंट्रीज में फैला हुआ है, ये सारी चीजें जब हम क्लियरिटी, जितना पारदर्शी से हम मेंबर को बताएंगे उतना क्वालिटी मेंबर आएगा। और हमारा मकसद जो है मेंबरशिप डेवलपमेंट का, ये इनिशियल स्टेजेस में ही है फ्रेंड्स। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में लाने के लिए 50 मेंबर्स लगेंगे, मगर 50 से 500 मेंबर्स होने में फिर टाइम नहीं लगेगा। तो वो मेंबर के जो अपने आप खुद वो रेस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है और ऑटोमेटिक मेंबर्स बढ़ते जाते हैं। इंडोक्ट्रिनेशन के बाद में इंडक्शन में यहाँ पे स्पॉन्सरर मेंबर की खास जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वो जो भी नए मेंबर को लेके आते हैं, जो भी स्पॉन्सरर है, वो प्रॉपर तरीके से इंडक्शन करना है। मीटिंग में आप अपने बोर्ड मीटिंग में, जनरल बॉडी मीटिंग में डिसाइड कीजिए, अच्छे स्पीकर को लेके आइए, अपने अदर डिस्ट्रिक्ट के दूसरे क्लब्स को इनवाइट कीजिए। इस तरह से एक माहौल होना चाहिए, फंक्शन बिल्कुल एक एटमॉस्फेयर, कोई फेस्टिवल का एटमॉस्फेयर होना चाहिए। क्योंकि जो भी मेंबर को हम इंडक्ट करने जा रहे हैं वो क्लब के मीटिंग में, क्लब के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, उसे एक इम्पोर्टेंट, उसे फील होना चाहिए कि मैं बहुत एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने जा रहा हूँ, और वो अपने आप में बहुत अपना एक इम्पोर्टेंस व्यक्ति फील करना चाहिए। तो उस वक्त उसे स्पॉन्सर मेंबर एक सही, उसे जो व्यक्ति को वो मेंबर बनाना चाह रहे हैं, सही सीट उसे एस्कॉर्ट करना चाहिए, सही सीट प्रोवाइड करना चाहिए। और जब इंडक्शन ऑफिसर जब भी उन्हें बुलाते हैं तो स्पॉन्सर प्रॉपर तरीके से एस्कॉर्ट करके लेके जाना है। इंडक्शन होने के बाद लेवल पिन्स है, सर्टिफिकेट्स है, मेमेंटोस है, ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें हैं, बट हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज जा रहा हूँ। फिर उसके बाद में इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे भी अगेन मेंबरशिप चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए। या जब भी है तो अगर सेशन के अंदर कुछ आइडिया देना चाहते हैं कि बातों को हम मान देंगे, उनकी बात एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व कीजिए, सर्विस एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए, चेयरमैन बनाइए, को चेयरमैन बनाइए। इसके बाद हमने इम्पोर्टेंट ऑटोमेटिक मेंबर अपने लिए एक एसेट, स्ट्रॉन्ग मेंबर साबित हो सकता है। और अगर बाय चांस कोई नए मेंबर मीटिंग में नहीं आते हैं तो स्पॉन्सर वो मेंबर को कॉल करना चाहिए कि हमने आपको किस किया, आप आते तो बहुत बढ़िया रहता था। ये नहीं कि आप मीटिंग में क्यों नहीं आए, मेरा वहां पे प्रेस्टीज इश्यू था, ऐसा करके नहीं। आप उसे प्रॉपर वे में हैंडल करते हुए, उसे मोटिवेट करते हुए आप वापस उसको एक इन्वॉल्वमेंट करने का है। हर प्रोजेक्ट में या सर्विस एक्टिविटी में उन्हें इन्वॉल्व करना है। फ्रेंड्स, इसके अलावा आज शहर इतना फैल चुका है, इतना बढ़ चुका है। मैं जो अभी पहले आपसे बात किया था कि आप अपने सराउंडिंग्स में देखिए, अपने फ्रेंड सर्कल में आप देखिए, अभी हर शहर, सिटी जो 25 से 30 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ था, आज वो 70 से 100 किलोमीटर के रेडियस में फैल गया। हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज है अभी तो नए मेंबर्स को लाने के लिए। हमें कुछ ऐसे इलाके, ऐसे एरियाज देखना है जहाँ पे अपने सर्विस एक्टिविटी की भी जरूरत हो, और वहीं पे साइमल्टेनियसली जो बिल्कुल हाई ग्रेड के लोग, आजकल जो कम्युनिटी रो हाउसेस बन रहे हैं, कम्युनिटी सर्विस के अलावा
जो सर्विस अपार्टमेंट्स है, इस तरह के काफी जगह पे जो आउटस्कर्ट्स में डेवलपमेंट हो रही है, वहां पे हमें सबसे पहले सर्विस एक्टिविटी करना है। आप उस एरिया को अट्रैक्ट करने के लिए एक अच्छे से ब्रोचर्स बना सकते हैं, होर्डिंग्स लगा सकते हैं, आप 1-to-1 बात कर सकते हैं। आजकल हर सोसाइटी में, आज सोसाइटी में प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज रहते हैं, उनसे आप बात करके अपने लाइनिज्म को स्प्रेड कर सकते हैं। हम लेपल पिन लगा के अब जब वहां से गुजरते हैं या कहीं ना कहीं आते जाते कुछ बातचीत होती है, तो तब हम हमारे लाइनिज्म को स्प्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले वहां पे लोकल पॉलिटिकल लीडर्स ले लीजिए, या जो भी वहां पे जिसका मीन्स होल्ड है, उन्हें इन्वॉल्व करते हुए आप वहां पे पहले सर्विस एक्टिविटी कीजिए। सर्विस एक्टिविटी में आप वहां पे उन्हें इन्वॉल्व करेंगे जो भी लोकेलिटी के मेंबर्स को, तो ऑटोमेटिक उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो ये देखेंगे कि लॉयनिज्म किस तरह से अपने आप को सर्विस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करता है, उनका सिस्टम कैसा है, उनका फाइनेंशियल प्रोसीजर कैसा है, वो कहाँ से फंड रेजिंग करते हैं, और एक जो अपना जो एक स्टाइल है काम करने का, वो उन्हें सब पता चलता है। और मेरी रिक्वेस्ट ये रहेंगी कि फर्स्ट एक्टिविटी में जब वे आते हैं तो उसी वक्त हम उन्हें लायन मेंबर्स बनने के लिए इनवाइट मत कीजिए। 1 से 2 एक्टिविटीज आप कीजिए, करने के बाद में वो एरिया में वो एरिया के नीड के अनुसार वहां पे एक्टिविटी करके उन्हें इन्वॉल्व कीजिए। 1 से 2 बार आप जब मिलेंगे, आज हमारे पास लाइनिज्म में ऐसे ऐसे लीडर्स है, ऐसे ऐसे हमारे पास सेशंस है, हम जरा वो कोई एक मेंबर 1 कदम बढ़ाता है तो हम सीधा 10 कदम बढ़ा के उसे लाइनिज्म में लाने के लिए हमारे पास हर तरीके की टूल्स मौजूद है। तो हम 100% के साथ ये कह सकते हैं कि हमारे सर्विस देख के वो आगे आएंगे। तो यहाँ पे फिर अगेन आइडेंटिफिकेशन की बात आती है, हमें मेंबर्स अच्छे से अच्छे सेलेक्ट करना है, और कोई भी क्लब को लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करना है तो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जो चार्टर प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर होते हैं, उनका चयन बहुत बढ़िया बेस्ट से बेस्ट रहना चाहिए। हो सके तो 1 से 2 मीटिंग आप कीजिए, 1 से 2 इंडोक्ट्रिनेशन मीटिंग कीजिए, थोड़ा समय लगेगा, बट प्रॉपर तरीके से पीएसटी का जो इनिशियल स्टेज पे चार्टर पीएसटी का जो सिलेक्शन होता है, उसे बहुत ध्यान देते हुए और पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ कीजिए। और अगेन सेम उन सभी का प्रॉपर इंडोक्ट्रिनेशन करना है। यहाँ पे जब हम न्यू क्लब बनाते हैं तो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल से इस तरह से एक डिजाइन किया गया है, सभी को पता है, गाइडिंग लाइन। गाइडिंग लाइन्स का यहाँ पे सर्टिफाइड गाइडिंग लाइन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सर्टिफाइड गाइडिंग लाइन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर द्वारा अपॉइंट किया जाता है। गाइडिंग लाइन लगभग फर्स्ट 6 मंथ्स कोई भी मीटिंग, जो बोर्ड मीटिंग होती है न्यू क्लब की, वो बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। वो उनका जो भी एवेल्युएशन करते हैं, जो भी प्रोसेस में डेवलपमेंट किस तरह से क्लब बढ़ रहा है, वो सारी रिपोर्ट वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को भी देते हैं और इंटरनेशनल को भी देते हैं, और एक्सटेंशन चेयरमैन रहते हैं, पेरेंट्स क्लब रहते हैं। तो इस तरह से जो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का एक जो सुंदर ढंग से जो ढांचा है और जो जिस तरह से हम मोटिवेट करते हैं, इसमें नो डाउट 100% अगर हम सिंसियरली तरीके से काम करेंगे तो बहुत एक अच्छा बढ़िया क्लब बनेगा। अभी हम ट्रेडिशनल क्लब के अलावा, रेगुलर क्लब के अलावा हमारे पास काफी क्लब्स है बनाने के लिए। हम एरिया और लोकेलिटी के हिसाब से हम स्पेशलिटी क्लब बना सकते हैं, फैमिली क्लब बना सकते हैं, कैंपस क्लब बना सकते हैं। अब स्पेशलिटी क्लब में आपको पता है जनरली हम उस वो एरिया को जहाँ पे जो पर्टिकुलरली एक सबके एक ही ध्येय है, सबका एक ही, जैसे फॉर एग्जांपल आप पुलिस डिपार्टमेंट से कोई रिटायर हुए या बैंक से कोई रिटायरमेंट है या मिलिट्री से निकले, तो जो भी इस तरह से एक ही ध्येय के जो लोग हैं, एक ही उद्देश्य जिनका है, वो बहुत आसानी तरीके से हम उन्हें स्पेशलिटी क्लब में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैंपस क्लब है एंड फैमिली क्लब है। फैमिली क्लब में भी आपको ज्यादा मेंबर्स बनाने में दिक्कत नहीं आएंगी। 10 मेंबर्स 10 कपल्स बनाने से आपको एक फैमिली क्लब, अच्छा फैमिली क्लब बन सकता है। फैमिली क्लब में जनरली आजकल किटी पार्टीज वगैरह काफी होती है। फैमिली क्लब अगर हम बनाते हैं तो वहां पे मेंबरशिप बहुत स्ट्रांग रहती है और डेवलपमेंट ज्यादा होता है, अच्छे से अच्छे सर्विस एक्टिविटी आ सकते हैं। और फैमिली क्लब का आपको पता है, हेड ऑफ द फैमिली को $43 एंड सब्सक्रिप्शन जो है अदर फैमिली मेंबर्स को 50% होता है। इस तरह से काफी अपॉर्चुनिटीज है, काफी हमें चॉइस दी गई है कि हम किस तरह से मेंबर्स को देखते हुए हम अपने आप को दूसरे क्लब बनने में हमें सहूलियत मिल सके। फ्रेंड्स, जब भी हम कम्युनिटी में जाते हैं, जब भी हम नॉन लाइन मेंबर्स के बीच में जाते हैं, तो उन्हें आप गर्व से बताइए कि हम कौन है, लायंस कौन है, लायंस का डेफिनेशन क्या है, लायंस
क्या करते हैं, आज लॉयंस कई स्टेट में एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं। अगर गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी तो हमारे पास इतना नेटवर्किंग, बेस्ट नेटवर्किंग है, आज हर एनजीओ में बेस्ट एनजीओ है, आपको पता ही है। तो अपने लॉयनिज्म के बारे में आप दिल से और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अगर नहीं कहेंगे तो हम मेंबर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको हमारा जो नेटवर्किंग के बारे में बताइए आप, हम एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अभी रिसेंटली, मैं हैदराबाद में रहता हूँ, मुझे रिसेंटली एक बैंगलोर से कॉल आया कि किसी व्यक्ति को ब्लड चाहिए, बहुत ही सीरियस कंडीशन है, और वो व्यक्ति अहमदाबाद के मैसाना करके कोई गांव है वहां पे है, और मैं हैदराबाद में हूँ। मैंने इमीडिएटली वहां के पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर धर्मेश सोनी जी से बात की, उन्होंने मुझे इमीडिएटली कांटेक्ट करवाया वहां के ब्लड डोनेशन चेयरमैन धर्मेश पटेल जी से। आप यकीन मानिए सिर्फ विद इन 2 आवर्स में उन्हें ब्लड का अरेंजमेंट हो गया पेशेंट को। ये लॉयनिज्म है। आप बताइए सोसाइटी में, बताइए कि हमारा नेटवर्क कैसा है। मैं हैदराबाद में, बैंगलोर से मुझे कॉल आया, अहमदाबाद किया, अहमदाबाद में रूरल एरिया के अंदर ब्लड का हम अरेंज कर सक रहे हैं। तो बहुत से ऐसे सर्वे, हमारे सभी के ऐसे ऐसे सक्सेस स्टोरीज है, अगर हम बताने गए सोसाइटी के अंदर तो काफी अभी हमें ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे। जैसा कि अभी राजेश सर खुद बता रहे थे कि अहमदाबाद में कैसे कैसे परमानेंट प्रोजेक्ट्स है, और नो डाउट वहाँ आपके मल्टीपल में आज मेंबरशिप की ग्रोथ और रिटेंशन का परसेंटेज देखा जाए तो काफी बढ़िया है। फिर भी ये सारी चीजें हम एक प्रोडक्ट, हम ब्रांड एम्बेसडर के ऐसा एक हमारी मार्केटिंग करने के लिए हम आपके जो परमानेंट प्रोजेक्ट्स को है उन्हें यूज कर सकते हैं। और आप ये बताइए नए मेंबर्स को कि हमारे क्लब किस तरह से हम क्लब चलाते हैं, क्या हमारा सिस्टम है, हमारा कैसा प्रोसीजर है। हम हमारे क्लब में लेडीज, हमारा फैमिली क्लब है, फैमिली क्लब में अभी पिछले 14 साल में, 15 साल में 5 बार हमारे पास लेडीज पीएचडीज बन चुके हैं। 100% हमसे बेस्ट एक्टिविटी करते हैं वो लेडीज, अच्छा इन्वॉल्वमेंट है उनका। हमारे क्लब से जेटसीज, आरसीज भी काफी लेडीज आगे आ चुके हैं। तो हम हमारे क्लब में हम चिल्ड्रंस को भी 5 मिनट्स अलॉट करते हैं एजेंडा में। तो इस तरह से आप अपना प्रोसेस, किस तरह से हम ऑपरेट करते हैं, कैसा हमारा प्रोग्राम रहता है, हम फंड कैसा करते हैं, ये सारी चीजें आप कोई भी नए मेंबर्स को लेने से पहले आप ग्रुप में या सोसाइटी में एक इंडोक्ट्रिनेशन मीटिंग करके बताइए। हमारा स्ट्रक्चरल, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चरल है, जो ढांचा है, मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर है, जो हम अपने पर्सनल, कोई भी पर्सनल लाइफ में या पर्सनल बिजनेस में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास हर जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट से लेके क्लब प्रेसिडेंट तक का हर एक का टर्म 1 ईयर का है। सिर्फ इंटरनेशनल डायरेक्टर 2 इयर्स टर्म रहता है, बाकी सभी का 1 ईयर है। 1 ईयर का हम क्यों टर्म देते हैं, क्योंकि हमें एवरी ईयर नए नए जोश के साथ काम करने का है, हमें नए नए आइडियाज चाहिए, हर एक का एक नया नया आइडिया रहता है। तो ओवरऑल सारे पूरे वर्ल्ड में हम इस तरह से काम करते हैं। आप सभी को पता है 24 आवर्स राउंड द क्लॉक 24 आवर्स हमारा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है। इंडिया में हम अगर दिन में काम करते हैं तो रात में दूसरे कंट्रीज में काम होता है। तो इस तरह से साल के राउंड द क्लॉक 24 आवर्स हमारा काम होता है। तो ये सारी चीजें आप किस तरह से हमारे पास लीडरशिप का मौका मिलता है, प्रेसिडेंट के बाद में जोन चेयरपर्सन, रीजन चेयरपर्सन, फिर गवर्नर, मल्टीपल लेवल पे इसामी, फिर डिस्ट्रिक्ट, इंटरनेशनल लेवल पे जो स्ट्रक्चर है, ये बताइए आप एक 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 एक, तो जिससे क्या इंटरेस्ट बना हुआ रहता है मेंबर का। और जहाँ पे हम जनरली जहाँ गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, मेरा ये मानना है कि हम नए मेंबर को लेने में हड़बड़ाहट में, गड़बड़ाहट में मनी मैटर्स का जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है वो ठीक तरीके से बताते नहीं। तो फ्रेंड्स, ये इस बात का ध्यान रखिए, आप फाइनेंशियली कमिटमेंट्स, हर डिस्ट्रिक्ट में हर क्लब का एक अपना अपना एक प्रोसीजर है। जो भी बोर्ड मेंबर्स डिसाइड करते हैं आपकी क्लब फीस, इंटरनेशनल मल्टीपल्स वगैरह जो भी और दूसरे एक्सपेंसेस रहते हैं मिला के, वो क्लियरिटी दीजिए आप न्यू मेंबर कि भाई इस तरह से आपके एवरी ईयर सब्सक्रिप्शन रहेगा, एंट्री फीस ये रहेंगी। में खासियत है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने, तो ये बताइए आप किस तरह हम आगे मेंबर्स को लेके हमारे Some disturbance is there.
नो डाउट आपके पास भी पिछले एक दो 59 या 69 क्लब्स देखे हैं आपके मल्टीपल में, तो इसमें कितना एफर्ट्स एक दो मेंबर्स है, एक दो लोगों से ये नहीं है। तो हमारे पास पिछले 3 इंडस्ट्रियल लगती है हैदराबाद। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में हम हमारा एक लॉयंस का स्टॉल लगाते हैं, जो एशिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन लगभग 1 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक रहती है। ये साल अभी कमल, यू आर म्यूटेड। आई थिंक बीच में आपकी आवाज चली गई थी। कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज? यस यू आर टॉकिंग अबाउट तो- इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, सो स्टार्ट हाँ। विद इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन। लोगों ने मिस किया वो पॉइंट। या ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में हमें स्टॉल मिला, वहां पे लगभग 25 का जो आना जाना है 45 डेज में होता है। तो जो इमेज लाइनिज्म का एनहेंस हुआ, वहां पे हम सर्विस एक्टिविटी भी करते हैं, और जो भी लोग वहां पे आते हैं हम उन्हें एक फीडबैक फॉर्म देते हैं जिसपे लिखा हुआ रहता है कि आप क्या आप लॉयनिज्म के सर्विस एक्टिविटी के बारे में जानते हैं क्या आप लॉयनिज्म ज्वाइन करना चाहते हैं क्या। अगर आप लॉयनिज्म में इंटरेस्टेड है तो उनका हम पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं, और वहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट के और जो सर्विस परमानेंट एक्टिविटीज है वो डिस्प्ले करते हैं। तो इस तरह से हम मेंबरशिप के लिए वहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे हमें अभी पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं, अभी हमें उसका बेनिफिट मिल रहा है। अभी जॉर्ज सर ने जैसा कि बताया, हम ब्रेकफास्ट सर्विस कराते हैं। 2 गवर्नमेंट हॉस्पिटल है राजेश सर, हम वहाँ पे डेली लगभग 400 से 500 लोगों को हम ब्रेकफास्ट कराते हैं, और हमारे क्लब के डिस्ट्रिक्ट के अदर क्लब्स मिलकर टोटली हम 1000 मेंबर्स को हम लोग फूड प्रोवाइड करते हैं। हंगर रिलीफ का जो प्रोग्राम है, इतना इमेज बनता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, हमें है। ये सारे प्रोजेक्ट, सारे एक्टिविटीज लगभग पिछले 4 से 5 साल से चल रहे हैं। 1835 दिन हमने आज, ये 1835 दिन आज हम कंप्लीट करे हैं। तो ये जो हम अपने हाथों से, और जो स्पॉन्सर रहते हैं, टाइम टू टाइम जब कोई स्पॉन्सर है और वो सर्विस एक्टिविटी करता है, तो ऑटोमेटिक सर्विस एक्टिविटी खत्म होने के बाद में वो पूछता है लॉयनिज्म क्या है, हम लॉयनिज्म में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, क्या प्रोसीजर है। काफी लोगों को लॉयनिज्म के बारे में पता है, बट ये पता नहीं कि किस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे। तो हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि ज्यादा से Kamal, your video, now your video is there. Okay, continue. Your picture was not there. Continue, sir. yes. No, it's stuck, I think. स्क्रीन दिख रहा है सर? या कमल जी दिख रहा है, आप कंटिन्यू करें प्लीज। नाउ वी कैन हियर यू। बीच में आपका वीडियो फ्रीज हो गया था, प्लीज गो अहेड। नहीं, ये आगे जा रहा नहीं है सर। मैं एक बार स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ सर। श्योर। Okay. एक लास्ट है, थोड़ा सा स्क्रीन दिख रहा है? आ रहा है, अभी तक आया नहीं है। इट्स येट टू कम। शायद नेटवर्क का थोड़ा बता रहे साहब। आ गया। हाँ, That's आ okay. गया। आया सर स्क्रीन? जी आ गया। और ये आगे पीछे नहीं हो रहा, शायद स्टक हो गया, कोई बात नहीं। ये मैं जो आगे जो बताने जा रहा था, एक फुटप्रिंट का एक डिजाइन है, 2 पाँव के फुटप्रिंट से। मैं ये फुटप्रिंट से ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी मेंबर एक ये फुटप्रिंट के वैसा कि मैं अकेला ही हूँ जो भी करने वाला हूँ, ये धारणा बिल्कुल मन में नहीं लानी चाहिए। हमारे पास जीता जाता एग्जाम्पल है हमारे मेल्विन जोन्स का। मेल्विन जोन्स अकेले सेल्फलेस सर्विस किया है उन्होंने, कभी प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बनने की कोशिश नहीं की कि वो आई से वीक के लिए काम करे। तो ये जो भी, अगर आपको आगे मेंबरशिप के डेवलपमेंट के लिए जाना है, तो ये जो फुटप्रिंट है अगर आगे आया तो देखिए, फुटप्रिंट की तरह एक ही आदमी, मैं ही अकेला काम करने वाला हूँ, ये धारणा कोई मेंबर में नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट उस जो स्लाइड में है, ये फुटप्रिंट्स इस तरह से राउंड है,
तो मैं ये फुटप्रिंट्स के द्वारा राउंड राउंड से ये बताना चाह रहा हूँ कि हम डेवलपमेंट करते हैं, अगेन सिर्फ हमारा एक लिमिटेड दायरा नहीं रहना चाहिए, लिमिटेड ग्रुप नहीं रहना चाहिए कि भाई हमारे जो 4-5 मेंबर्स हैं, हम पहले से हैं, हम स्टार्टिंग से है, हमारा सर्कल वही है, हम एक ही अपार्टमेंट से आते हैं। और ये अगर इस अगेन फिर आप 4 या 5 मेंबर से ही आप आगे काम करेंगे तो अगेन वही सर्कल में घूमते रहेंगे, उसी तरह से आप आगे बढ़ने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। आप अपना माइंड ओपन रखिए, आप ये मत सोचिए कि लॉयन एक्स ने एक नए मेंबर को लेके आया तो उससे मैं क्या कर सकूंगा, उसकी जिम्मेदारी है। नहीं, आप एज ए क्लब मेंबर आपकी सारे मेंबर्स की ये जिम्मेदारी रहती है कि सभी को साथ में लेके चलना है, तभी हम जाके हमारा जो टारगेट है हम उसे अचीव कर पाएंगे। फ्रेंड्स, 1-2 स्लाइड्स थे वो जा चुके हैं, बट अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, मेंबर्स आज का जो टेक्निकल पीरियड चल रहा है, आज के टेक्निकल पीरियड में मेंबर्स को लाना कोई बड़ी बात नहीं है, मेंबर्स को रखना बहुत बड़ी बात है। रिटेंशन यानी मेंबरशिप सेटिस्फैक्शन, जो अभी हमारे इंटरनेशनल द्वारा ग्लोबल मेंबरशिप अप्रोच पिछले लास्ट ईयर ही कुछ डिस्ट्रिक्ट को अलॉट किया गया था, जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट पायलट डिस्ट्रिक्ट है, हमने बहुत कुछ करके दिखाया है। तो सभी के साथ मिलकर जुड़ के करिए, हमारे पास काफी मटेरियल है, काफी हमारे पास हमारे फैकल्टी है जो हमें टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहते हैं, हमें टाइम टू टाइम फीडबैक मिलते रहता है। अगर हम उसे प्रॉपर तरीके से फॉलो अप करेंगे तो नए मेंबर्स आने में कोई दिक्कत नहीं रहेंगी, और डेफिनेटली एक हम हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे सकते हैं, जो कि हमें अभी इस वक्त बहुत जरूरत है। और खासकर मेंबरशिप सेटिस्फैक्शन की तरफ ध्यान दीजिए सर। थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ भी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस मेंबरशिप डेवलपमेंट, एंड थैंक यू राजेश जी एंड जॉर्ज चेरियन जी, आपके आशीर्वाद से जो भी कह सका। I invite George, Mr. George, if you want to say something. Yes. Kamal Kishore has made a beautiful presentation. In spite of the technical problems he had in between, he was able to present the whole thing beautifully. Membership development is so close to his heart. That is the reason why he could make this presentation as if he was telling a story, various steps in member recruitment. And most importantly, he has given some beautiful examples. I am sure that footprint, that picture didn't come. That was a beautiful idea of his. I have seen that, unfortunately, because with the technical problem that couldn't be seen by the listeners. But the other example he has given with that coin and all, it's a wonderful idea. We are unable to separate a coin between the head and tail. And if it happens so, that will be a mystery. That he has said beautifully, that may be something that may be happening in our clubs. Anyway, it was very interesting to listen. Kamal Kishore, it was a beautiful presentation. Why don't you all of you join together to give a big round of applause to this beautiful presentation. Thank you. All the best, Kamal Kishore. Thank you, sir. Thank you very much, George. Any question, please? Yes, Dasani ji, I am Bharat Seth. Yes, speak. 3232B1. Right now I am GLT. Last year I am GMT. ऐसे जैसे कहा जाता है कि we think positive only. हम पॉजिटिव ही बात करते हैं। लास्ट ईयर 69 क्लब्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में बढ़ा था, लेकिन एक मेरा कहना है कि जैसे लायनिज्म में मेंबर बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये जो फ्री सभी हम लास्ट ईयर भी महसूस किया, इस साल भी महसूस करते हैं, और लायन इंटरनेशनल में कई सालों से 14 लाख के आसपास घूम रहा है ये आंकड़ा। तो ये क्यों घूम रहा है? समथिंग इज, अपने को सोचना चाहिए और एक्चुअली मार्केटिंग, एक्चुअली स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। इंक्रीज तक 20 लाख तक क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। इसीलिए अपने को ये लीडरशिप को अच्छी तरह सोचना चाहिए कि क्या क्या अपना डिफेक्ट है, क्या व्हाट इज द प्रॉब्लम फ्रॉम आवर साइड। ये आगे बढ़ता है, पीछे आता है, 14 के लाख के आसपास ही रहता है। उनका कारण क्या? अग्रवाल जी प्लीज। सर,
लायनिज्म में, इंडियन लायनिज्म की बात करता हूँ। इंडियन लायनिज्म में इतनी कैपेसिटी है कि वो खुद ही अकेला ही इंडियन लायनिज्म 14 लाख मेंबर्स कर सकता है। या शर्त यही है कि जो भी काम करना है यहाँ से काम करना है, अपने पास प्रॉपरली क्या होता है, ऊपर से प्रेशर आता है, हमें इतने मेंबर्स चाहिए, हमें इतने क्लब्स बनाना है, वहां पे जाके जो मिस्टेक हम करते हैं वो उसमें मैं भी अपने आप को मानता हूँ। तो जो भी हम मिस्टेक करते हैं उस तरफ हमें ध्यान देना है प्रॉपर तरीके से। जो मैं 5 आइज के बारे में बताया वो प्रैक्टिकली उसे अगर इम्प्लीमेंट करते हैं और प्रॉपर तरीके से हम मेंबर, जो नए मेंबर को हम इन्वॉल्व करते हैं और प्रॉपर तरीके से इंडोक्ट्रिनेशन होता है। अगर कोई मेंबर को नया रहने दीजिए या पुराना रहने दीजिए, हम लायनिज्म में एक फैमिली की तरह है। सुख दुख या सब्सक्रिप्शन देने में भी कभी कभी कोई मेंबर को दिक्कत आती है तो उस वक्त हमें उसे अपने फैमिली मेंबर समझ के उसका नाम आगे नहीं आते हुए उसे भी साथ में लेके चलना है। ये सब सारी चीजें अगर आप फैमिली मेंबर्स की बात करते हैं तो रियली में परिवार के वैसा अगर हम मेंबर को ट्रीट करेंगे तो 100% मेंबर रिटर्न रहेगा। मेंबर्स का सेटिस्फेक्शन वही है सर। हम छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, हम सिर्फ बड़ा बड़ा हमारा टारगेट, बड़ा बड़ा अचीवमेंट होता है, उस वजह से हम थोड़ा सा फेल हो रहे हैं। तो हम सिर्फ छोटी छोटी बातें, उन्हें उनकी जो जरूरत है, उनका जो रिक्वायरमेंट है, मेंबर आता है तो उसे खाली आप सीट पे बिठाइए, लेट आता है तो नाराज मत होइए, उसके पीछे कई रीजन होते हैं। ये सब अगर पॉजिटिव वे में अप्रोच होंगे तो डेफिनेटली हम सब मिलके, हमारा डिस्ट्रिक्ट आपका डिस्ट्रिक्ट मिलके 14 लाख मेंबर पार कर सकता है सर। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, उतना है। मैं भी बोल सकता हूँ कि अपन बढ़ा सकते हैं, मोर देन 25 lakhs कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी है कि ये प्रॉब्लम आगे बढ़ता नहीं है, कुछ लैक ऑफ अपने साइड में है, तो उसके ऊपर सोचना चाहिए कि क्या व्हाट इज द प्रॉब्लम। बिल्कुल सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए सर। अपने अपने क्लब लेवल पे ही अगर मेंबर्स, क्योंकि ये जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है रिटेंशन की क्लब लेवल पे है, उसमें मल्टीपल या डिस्ट्रिक्ट कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ मोटिवेट कर सकता, गाइड कर सकता है। तो क्लब लेवल पे ही, ग्रास रूट लेवल पे ही ईगो अपना बाजू हटाना होगा। अगर कोई मेंबर नहीं आ रहा है या उससे तकलीफ है तो घर पे जाके बात करना होगा, उसके साथ बैठना होगा। अगर कुछ आगे पीछे बनता है तो कहीं झुकना पड़ा तो झुकना, अपने आप को झुकाना पड़ेगा, तब जाके हम ये सारी चीजें अचीव कर पाएंगे सर। ये सब चीजें आना चाहिए, हर मेंबर में ये भावना आना चाहिए। हम यही भावना सिखाते हैं, 5 आई सिखाते हैं, ओरिएंटेशन करते हैं, सिक्योरिटी करते हैं, सभी करते हैं। ये तो प्रोसीजर हो ही रहा है रेगुलर। मेरा क्वेश्चन है। हाँ चलो चलो भरत भाई अभी नेक्स्ट किसी को opportunity देते हैं। If anybody else, कोई दूसरा पूछना चाहता है तो प्लीज। यस बोलिए सर नमस्कार। मैं ये चाहता हूँ कि जो फोटो ही आ रहा है इनका, चल रही है, चलो एनीबडी एल्स कोई है क्या दूसरा? किसी को सुभाष भाई इनकी आवाज आ रही है, ताहिर जी की आवाज आ रही है, प्लीज ताहिर जी को बोलने दीजिए। हेलो, हाँ बोलिए सर, आ रही है आवाज? जी बोलिए बोलिए। जो अभी एलबीएल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे शुरू हुआ है, बोलिए हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिजनेस को लाइन के साथ एसोसिएट किया जाए तो मैं समझता हूँ कि मेंबरशिप भी बढ़ेगी और रिटेंशन भी बढ़ेगी। बिल्कुल सर, ये जो आज अभी कैसा है देखिए सर, आज जैसा बीएनआई ले लीजिए या टेक्नोलॉजी, अभी लाइनिज्म का जो पहले की सोच थी उसमें बहुत काफी बदलाव आ चुका है। मेंबर ज्वाइन होने से पहले उसके दिल में ये भी रहता है कि मेरा क्या फायदा होगा उसमें। तो हम चाहेंगे कि जो भी रहेगा, हम नेचुरली, आज मेरा रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई भी रेडीमेड से रिलेटेड कोई भी अगर उनको जरूरत पड़ती है तो मुझे ही कांटेक्ट करते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन के फील्ड में है, अगर हमको कुछ जरूरत पड़ी तो पहले लॉयन मेंबर्स को ही हम कांटेक्ट करते हैं। और इस तरह से अगर हम मेंबरशिप का बिजनेस का डाटा अगर हम कलेक्ट करते हैं तो आपने जिस तरह से कहा है, डेफिनेटली बिजनेस भी बढ़ेगा, मेंबरशिप भी बढ़ेगी, काम करने में भी साथ में मजा आएगा। नहीं, मेरा यही कहना है कि हमारी काफी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिजनेस टू बिजनेस बी और ये सब क्लबें अभी डेवलप होने लगी है। इसके कारण मेंबरशिप ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई है। हमारे पर्टिकुलरली मल्टीपल 3232 के अंदर लास्ट ईयर 271 न्यू क्लब्स हुई थी और 3000 मेंबरशिप की ग्रोथ हुई थी। और अभी भी इन 4 महीनों के अंदर वी हैव ऑलरेडी इंक्रीज 50 न्यू क्लब्स। 50 तो हमने कर चुके हैं, तो हमारा टारगेट 200 क्लब्स का है और डेफिनेटली हम ये फिर से अचीव करके दिखाएंगे। और इसके लिए हमने जो किया है कि
सब पूरे गुजरात में छोटे छोटे जो टाउन है जहां पर आज तक लायंस क्लब नहीं है वो हमने आइडेंटिफाई की है। बिग सिटीज के अंदर जहां बिग हाउसिंग स्कीम है उसके अंदर भी हम मार्केटिंग के आदमी भेज रहे हैं। इस तरह से नई एरियाज को ढूंढ रहे हैं, तो उसके कारण क्लबें अभी फिर बढ़ेगी। स्पेशलिटी क्लब का भी उपयोग कर रहे हैं। तो मेंबरशिप में पर्टिकुलरली हमारी मल्टीपल पीछे रहने वाली नहीं है। फिर से 4000 का नया ग्रोथ 3-4000 का फिर इस साल फिर करेंगे, बिकॉज ये हमारी मल्टीपल जब अलग हुई थी तब 11000 मेंबर ही थे। सिर्फ 4 साल पहले अलग हुई थी और 4 साल के बाद 11000 के हम आज 20000 पे पहुंच गए हैं, ओनली विद इन 4 इयर्स। और आगे फिर से और आगे बढ़ने के लिए हम फिर तैयार हैं। हमारा टारगेट इमीडिएट 2 साल के अंदर 25,000 मेंबर्स का है। तो ये चीजें हम ग्रोथ करते रहेंगे। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट अभी तक 5 थी, इस बार डिस्ट्रिक्ट भी हम 7 करने जा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे हम हर एक एंगल से बढ़ रहे हैं। बहुत सर, आपकी विचारधारा और हमारे डिस्ट्रिक्ट की विचारधारा बिल्कुल मिलती है सर। हमारा भी टारगेट वैसा ही है। हम भी 100 मेंबर 100 क्लब्स बनाने जा रहे हैं। और आपसे जो मुझे अभी टिप्स मिले हैं कि बिजनेस टू बिजनेस में किस तरह से डेवलप करते हैं, हम भी हमारे इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हुए नए एरियाज को भी टारगेट करेंगे सर। नहीं, इवन हमने तो एक दूसरा भी चालू किया है, केपीएल, जैसे कर्नावती प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच है कि एक क्लब के अंदर 8-8 टीमें बना के उनके यंग मेंबरशिप, उनको परमानेंट मेंबर होगा वही खेल सकेगा। इस तरह की मैचें भी खिला रहे हैं, उसमें भी मेंबरशिप बढ़ी है। ये कई तरह के हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें धीरे धीरे सफल होंगे हम। नहीं, यही प्लेटफॉर्म है सर। ये हम आइडियाज अगर शेयर करेंगे तो यही प्लेटफॉर्म पे पता चलता है कि हम एक दूसरे के जो भी आइडियाज है काम में आ जाते हैं सर, मेंबरशिप डेवलपमेंट। यस हरीश भाई, मैं 2 मिनट बोलना चाहूंगा। जी सर। हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये बोलना चाहूंगा कि पोटेंशियल जो है वो एनॉर्म, सिर्फ उस पे फोकस नहीं है। अब फोकस कैसे लाना है, मैं उसके लिए अहमदाबाद में 2 सेमिनार कर रहा हूं 27 और 28 नवंबर में। मैं 2 चीजों पे एम्फसाइज कर रहा हूं। एक है एजुकेट द लायन टू बिकम ए बेटर बिजनेस ओनर, लीडर एंड प्रोफेशनल। Number 2, how he can educate the society and serve the society better by growing himself and growing his club, growing his district and growing everybody around him. जब एक growth mindset आता है ना, तो आप उसके find purpose. Why am I here in Lionism? What should I give every single day? And I'm so happy that I got this link today from Shyam Sundar Agarwal. और मैं पिछले 1 घंटे से सुन रहा हूँ। Potential is enormous. Yes. Action is important, and coming together, building that community from I to we. And when you say we serve, which is your Melvin Jones, the message should be we serve, and together we serve better. If you install this in your club, in your district, and everybody around, you will see the difference you will make. And I'm happy to come and serve you people on those 2 days, 27th and 28th in Ahmedabad. Thank you for this opportunity to permit me to speak for these 2 minutes. Thank you. अरे हरीश जी, Good idea, अहमदाबाद में कहाँ पे करने वाले हो ये प्रोग्राम? ये हमारा LBN में है, LBN। अच्छा, LBN में। ओके। ये अपना LBN है। भरत शेख साहब बताएंगे आपको। Yes, 3232B1 LBN। या ओके। मुरलीधर जी बोलिए। ओके, Thank you, Kamalji. It's a very great learning from you always. I'm from the same district, region 320. I'm region chairperson, 320B, Muralidhar Bala. I have a question now. What I found, just 5 years ago, I entered. I'm a retired police officer. The club members who entered the Lionism, they are not leaving. After 4 or 5 years, they are sticking on.
What I feel is 1 or 2 years they are coming and going away. Number 1 point. Number 2 point is now time has come for the Lion leaders to take care of their own members first. They should think about the welfare about their own club members. It's serving our own club members is also serving to the people. Yeah. It's my opinion. What do you say, Kamal? या बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे मल्टीपल में एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पे हर मेंबर की एक्सीडेंटल पॉलिसी की गई है। 3000 मेंबर्स है वो डिस्ट्रिक्ट में, सारे मेंबर्स की एक्सीडेंटल पॉलिसी की गई है 10 लाख। तो इस तरह से, और अभी हमारे पास रिसेंटली यशोदा हॉस्पिटल के साथ जॉइन अप होके रिसेंटली जस्ट 2 days बैक ही फाइनल हुआ है। ओनली मेंबर्स के लिए हम लोग एक मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। तो ऐसा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि सिर्फ 2 या 3 साल में, जहाँ पे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मेंबर्स को ये 2-3 साल ही संभालना है। वो 2-3 साल अगर हम मैनेज कर लिए उन्हें, तो फिर लायंस फैमिली से कोई हटता नहीं है। We should, correct. Then we should have some program for the new members always. We should see that who have come last 1 or 2 years. We should hold some exclusive programs for them, what I feel. बालाजी साहब, ये every time we are conducting awareness program and seminars for the new members, but it's the responsibility of the club members or the president to bring that new members to the session. So we can't blame means senior members or district, क्योंकि district हमेशा कोई ना कोई every step every level पे वो न्यू मेंबर्स के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड कुछ ना कुछ लीडरशिप डेवलपमेंट एंड एज अ टीम एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम गोल अचीवमेंट, ऐसे टाइम टू टाइम हम सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं। बट क्लब लेवल से मेंबर्स प्रेसिडेंट्स वगैरह मोटिवेट करके वो मेंबर्स को लेके आना है। मेंबर सेटिस्फेक्शन क्लब लेवल पे ही है, पीएसटीज एंड अदर मेंबर्स पे डिपेंड करता है। राइट। सो नाउ अब मैं यहाँ पर स्टॉप करना चाहूंगा क्योंकि 10 बज गए हैं और हमारे मेंबर्स को ओवरडोज भी हमको नहीं देना है। क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम्स एवरी मंथ हमको करने हैं। लेकिन आज जो प्रोग्राम हुआ काफी फायदा हुआ है। मेंबरशिप डेवलपमेंट की बात हो या परमानेंट प्रोजेक्ट, क्योंकि ये भी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। परमानेंट प्रोजेक्ट आपका अच्छा होगा तो मेंबरशिप ऑटोमेटिक बढ़ेगी, और क्लब की पहचान यदि परमानेंट प्रोजेक्ट होगी तो उस क्लब में मेंबर भी जुड़ेंगे। तो ये एक कॉम्बिनेशन जो सब्जेक्ट्स का दिया है, उसके लिए भी मैं हमारे जो भी ऑर्गेनाइज जो नक्की करते हैं, पर्टिकुलर दीपक जी, उनका भी धन्यवाद मैं करता हूं। हमारे संजीव गांधी भी इस प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने में मदद रूप देते हैं। नरेंद्र भंडारी जी ने इनिशिएटिव लिया ही है, उन सब का धन्यवाद देता हूं। अब मैं हमारे जो हिरेन जी मेवाड़ा हैं, जो ये मार्केटिंग प्रोग्राम के लिए करते हैं, उन्हें मैं कहूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स करते हैं। हिरेन जी। हाँ, थैंक यू सर। Presiding officer, GAT area leader, and all leaders and friends. First of all, I would like to thank creative personality and GAT area leader Subhash Dasani ji. I thank multiple chairman JP Trivedi for taking of initiative leadership of such type of program. I specially thank Lion Guru Raja Bahadur is giving good presentation and his subject project planner and project ideas. આપણે કહીએ કોઈ બી પ્રોજેક્ટ કરના હે તો પ્લાનિંગ ઇઝ ઇનેવિટેબલ, એટલે જે વસ્તુ એવોર્ડ ના હોઈ શકે, if you plan to fail then plan will be fail. કે જેમ કે શર્ટ का फर्स्ट बटन फिट करने में गलत लगा तो पूरे शर्ट के बटन गलत लग जाएंगे, like that. Our area leaders select very perfect subject and proper execute them. Project માં સમય બદલાય તેમ પેટર્ન એન્ડ આઈડિયાઝ બી બદલતા હે. જેમ અત્યારે સોશિયલ મીડિયા ઇઝ કી રોલ, डिजिटल मीडिया we all are used like this. दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि all are new permanent projects in our district 3232B1, such a Digvijaynagar Seva Mandir Vishradri Group as a 14-story opposite civil hospital, and Karnavati Club Eye Hospital Kidney Dialysis Center is properly planned and complete always before time with magnificence, because all of this work
is designed and executed by me as architect. Thanks, sir. Our another presenter, Lion Kamal Kishore Agrawal, is giving very good tips and ideas for membership development. More members, always more works. और उन्होंने जो हमको 5 steps बताए, identify, invite, indoctrinate, induct and involve, वो 5 step यूज करके हमको रिटेंशन पे भी ध्यान देना है, इतना इंपॉर्टेंट है. न्यू डेवलपमेंट एंड रिटेंशन मेंबर, जैसे LBM की बात हुई, क्रिकेट लिंक की बात हुई, न्यू थॉट्स की बात हुई, विथ परमानेंट प्रोजेक्ट्स एंड विथ परमानेंट आइडियाज, बोथ आर द प्रॉपर प्लान एंड इम्पोर्टेंट. और जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक फैमिली क्लब्स का भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, तो नए आइडियाज के हिसाब से अपने चलेंगे तो मेंबरशिप का, रिटेंशन और डेवलपमेंट का सॉल्यूशन रहेगा. एंड टुडे विथ अस Lion Rajesh Mehra and George Seran, both mentor is today program. I thank them for keeping small things in mind and doing great introduction of the presenter and mentoring. I thank to governors, vice governors, multiple council secretary Narendra Patel and all Lions friends present over here, and my colleague technical coordinator today Hardik Mehta is doing wonderful job and organized seminar. અને લાસ્ટ મેં એક શાયરી से खत्म करूंगा કે સફળતાની સીડી એક આત્મવિશ્વાસ છે, પ્રગતિની પગદંડી નિરંતર અભ્યાસ છે, ક્યાંય રોકટોક નથી, બધા દ્વાર ખુલ્લા છે, જેના શ્વાસે શ્વાસમાં વિશ્વાસ છે. બસ મિત્રો, આવી રીતના આપણે બધા સાથે મળતા રહીએ, આગળ વધીએ અને જેમ સાહેબે કીધું એમ એક્શન મોડમાં લાસ્ટમાં આવી અને આગળ વધીએ. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય લાયનવાદ. थैंक यू हिरेन भाई. अभी लकीली हमारे साथ 320 मल्टीपल से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विद्यासागर रेड्डी जी भी यहाँ पर उपस्थित है. मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सर यू एड्रेस अस. So thank you, sir. Thank you very much for giving me the opportunity to address all the Lion friends. Namaskar to everybody. Really, it's actually my Adha is because of the bandwidth length was very low. Because since I know what exactly is the content, I heard it, and particularly regarding the project, the first session I heard it very well. How to plan a project, how to execute a project. Really, it is a wonderful session. And as far as Kamal, I know him very well for the last. He is my first vice governor, and he is doing service for the last 6 years, continuous uninterrupted service he is doing last 6 years. So he's a man of service, he's a man of membership, and everyone loves him like anything in our district. So that's what I can say. And really I thank the introducers and the organizers very well. It's a very much encouraging and enriching program for everyone. But because of this Zoom interruptions only, sometimes we are feeling very bad because we could not hear continuously, for which you cannot do anything, I cannot do anything. God is there. So thank you very much, sir. Thank you very much for giving me this opportunity also. Thank you. थैंक यू विद्यासागर जी, थैंक यू. एंड मेरा एक मैसेज भीमैया जी को भी देना.